today we will discuss about factors affecting capital structure. Okay. So what is capital structure? First of all, we will look at the meaning of capital structure. So capital structure means the composition or makeup of the amount of long-term funds. Okay. Composition or makeup of the amount of long-term funds. So composition और makeup of the amount of long-term funds. So long-term funds जैसे कि हम लोगों को पता है long-term funds can be raised by the issue of equity shares, preference shares, debentures, retained earnings, okay, loans from commercial bank or any other financial institutions. तो उसका एक composition कैसे कितना funds कहाँ से raise करना है जैसे तो that is called as your capital structure. Okay. So long term funds also can be obtained from two sources. Okay. long term funds को भी हम लोग जैसे दो source से raise कर सकते हैं, collect कर सकते हैं. One is owners fund and another is borrowers fund. Okay. That is also known as owned capital, okay, and borrowed capital or borrowed funds. Clear? So owned capital or owners capital is also known as equity. Clear? So the capital which is contributed by the owner himself, जो कि by the issue of shares को issue करके जो capital collect किया जाता है from the members or from the shareholders, so that is called as own capital or owner's contribution, equity, which is also known as equity. And borrowed funds involve debentures, जो debentures से हम लोग funds raise करते हैं या तो from long term loans. So this includes borrowed funds. Clear? So next is the ratio between equity and debt. Borrowed funds is also known as debt and owner's fund is also known as equity. The ratio between equity and debt or owner's funds and borrowed funds का जो ratio है that is called as financial leverage or capital gearing. उसको capital gearing और financial leverage कहा जाता है. Okay. Next, financial leverage again is of two types. जैसे उसको भी two parts में divide किया गया है. When the proportion of debt is high, अगर हम लोगों का debt high है means borrowed funds ज़्यादा है, 10 लाख रुपए जैसे हम लोग raise किए हैं by the issue of debentures and from long term loans. So during that time it is termed as high gearing. उसको high gearing बोलेंगे और trading on thin equity, or high gearing. That is the position of when the proportion of debt is high. Okay. And on the other hand when equity dominates the capital structure, means dominate कर रहा है capital structure को, means equity से ज़्यादा funds raise किया गया है as compared to the debt. Okay. means borrowed funds से owners का contribution ज़्यादा है, so that is called as low gearing. उसको low gearing कहा जाता है और it is also known as trading on thick equity. Okay. trading on thick equity or low gearing when owners fund, जब owners का contribution ज़्यादा है, जैसे owners का contribution 10 लाख से and borrowed funds suppose हम लोग 5 लाख raise किए हैं, so that is low gearing. Next we will look at the factors affecting capital structure. So what are the various factors which affect the capital structure? Capital structure is the composition or makeup of, हम लोग देखिए अभी, amount of long term funds. So what are the factors affecting that? Number one is trading on equity or financial leverage. Okay. फाइनेंशियल लिवरेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लिवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स व्हेन ए कंपनी यूजेस borrowed funds in addition to the amount of equity के साथ borrowed funds को जब एक कंपनी यूज कर रही है in the regular conduct of business, then that is called as trading on equity or financial लिवरेज. क्लियर? बस इतना याद रखेंगे. फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? ठीक है. सो रेगुलर कंडक्ट में ओन फंड्स के साथ borrowed फंड्स जब यूज करती है और इक्विटी के साथ
अगर डेप्ट को भी यूज़ किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लेवरेज. Next factor, what are the various other factors which affect the capital structure? That is exercise of control. Exercise of control means जैसे कि हम लोगों को पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनका वोटिंग राइट्स होता है, दे हैव द राइट टू वोट. सो हर एक ये में ऑल वोटिंग राइट्स, दे एंजॉय ऑल वोटिंग राइट्स वी कैन से. एंड प्रेफरेंस शेयर का लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स होने के वजह से द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन देयर हैंड्स. तो उनके हाथ में जनरली कंपनी का कंट्रोल होता है. इफ द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी वांट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर ओन हैंड, अगर प्रोमोटर्स चाहते हैं कि उनके खुद के हाथ में जैसे कंट्रोल हो, they may not issue additional equity shares to the public. तो इक्विटी शेयर्स का जो क्वांटिटी है उसको कम इशू करना है लोगों को. इफ द कंपनी और द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी वांट टू कीप द कंट्रोल विद देमसेल्फ, अपने हाथ में अगर कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो उनका वोटिंग राइट्स रहेगा, तो उन्हीं के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स ए गुड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट एडजस्टमेंट कैन बी मेड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नीड अराइजेस. सो जैसे रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे नीड रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम लोग बरोड फंड से भी रेज कर सकते हैं एंड ओनर्स फंड से भी जैसे फंड्स को रेज कर सकते हैं. सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. सो नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स कंपनी एंजॉइंग रेगुलर एंड लिबरल अर्निंग. जिनका लिबरल अर्निंग है, रेगुलर अर्निंग आ रहा है, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह का, रेलवेज का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. दे कैन अफोर्ड टू हैव हाई कैपिटल गियरिंग. तो उनका वो अफोर्ड कर सकते हैं हाई कैपिटल गियरिंग. हाई कैपिटल गियरिंग, लो कैपिटल गियरिंग अभी हम लोग देखें. सो हाई कैपिटल गियरिंग क्या था? यस, जब बरोड फंड्स ज़्यादा होता है. ओके. सो बरोड फंड्स दे कैन अफोर्ड दैट, they can have high capital gearing, इसीलिए बोला गया है. बट on the other hand business firms which are subject to wide fluctuations, जिसमें जो बिजनेस में बहुत सारे टाइम पे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं डिमांड में, उसके अर्निंग कैपेसिटी में, तो उनको सेफ साइड में रहना है जैसे. सो दे फाइंड इट सेफर टू डिपेंड मोर ऑन इक्विटी कैपिटल और ओनर्स फंड, ओनर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, उस सोर्स से उन लोग ज़्यादा फंड्स जैसे रेज करना सेफ समझते हैं. ओके. विदाउट बरोइंग मोर फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से बरो नहीं करके दे आर यूजिंग देयर ओन फंड्स. क्लियर. सो दस आर द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. फिफ्थ वन इज पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंस. सो कितने टाइम के लिए जैसे हम लोग फाइनेंस ले रहे हैं, कहीं से भी फंड्स बरो कर रहे हैं, फॉर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट, अगर परमानेंटली इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर्स आर द अप्रोप्रिएट चॉइस. तो उस टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन्स विद द बिजनेस टिल द लाइफ लॉन्ग. ओके. टिल द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी जब तक बंद नहीं होती है तब तक इक्विटी कैपिटल कंपनी के साथ रहता है. इसीलिए अगर हम लोगों को परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो हम लोग इक्विटी शेयर से जैसे रेज करना बेटर रहेगा. एंड डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस. मीडियम टर्म के लिए जैसे 15 साल 20 साल के लिए हम लोग लेना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को डिवेंचर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स से वी कैन रेज द फंड्स. क्लियर. सो दिस इज पॉइंट नंबर 5. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज नीड ऑफ इन्वेस्टर्स. मीन्स इन्वेस्टर्स का नीड क्या है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इनकम एंड रिस्क. कितना मीन्स रिस्क ले सकते हैं बिजनेस में जैसे, और इनकम के रिलेटेड उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है तो ये चीज़ों को भी ध्यान में जैसे रखा जाता है. व्हाट इज द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स.